Welcome back everyone to English Wings. So today's topic is tips and tricks for Prezi writing. As we all know that Prezi writing consists of a very good marks in any examination for every classes. So today we are going to discuss the rules, the tips, the tricks, the sample of our Prezi all together in this video. So keep watching. So first of all, what is Prezi? The first point is the Prezi is a summary of something's main points. If you ever jotted down notes about your main ideas before writing a persuasive essay, you have used a Prezi. Prezi looks like precise. And of course, you always want your Prezi to be precise. But the words are pronounced differently. सो प्रेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म. सो प्रेसी हमेशा हम लोगों ने कई बार लिखा होता है बट वी डिडंट रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रेसी. सो प्रेसी शुड बी अ प्रिसाइज फॉर्म, अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. सो जब भी हम एसे लिखते हैं तो अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में टू राइट एन एसे. सो वो जो एक माइंड मैप होता है दैट इज़ द ओनली प्रेसी. सो उन्हीं वर्ड्स को ही एक प्रेसी बोला जाता है बट द नेम इज जस्ट डिफरेंट. सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड इफ डन वेल लेट्स यू शाइन देन अदर. दैट इज वाई अ गुड एम्फेसिस शुड बी गिवन टू राइटिंग अ प्रेसी. सो एक प्रेसी से ये समझ में आता है कि आपको वो पैसेज कितना समझ में आ रहा है, हाउ मच यू अंडरस्टूड द पैसेज, दैट रिफ्लेक्ट्स योर प्रेसी. A précis is a brief summary of a book, article, speech or other text. The basic characteristics of an effective précis are conciseness, clarity, completeness, unity and coherence. So क्या क्या characteristics होते हैं? First is conciseness, that means very compact. Clarity होनी चाहिए, clear होना चाहिए, sense बहुत ही ज़्यादा. Completeness, ऐसा ना लगे कि आपका पैसेज जो पूरा आइडिया दे रहा था आपका प्रेसी वो चीज़ नहीं दे रहा है. Unity, that means the point should be all together, compact form. Coherence, that means ऐसा नहीं कि आपने कि कुछ सीरीज या फिर कोई भी हायरकी फॉलो ही नहीं किया. You should follow a series. So even though you have read and understood the précis well, do not form your own opinions. You cannot insert your own remarks and criticism in a précis. Always take the fact and data that is given in the paragraph only. Also during a précis writing you cannot insert a question. So यहाँ पे आपको कुछ भी अपना insert नहीं करना. You can't ask a question, you can't form a opinion. जो भी आपको पैसेज में दिया just you have to jot down the points only. You don't have to form your own opinion because आपका opinion यहाँ पे नहीं पूछा गया है. आपको पूछा गया है कि आपने उस पैसेज में क्या समझा. What do you understood from the passage? So we have to follow certain rules that we must follow in order to write a very good précis. The first point is read the passage for at least 2 times. जब भी आप précis करो उसके पहले at least for minimum for 2 times आपको पढ़ना चाहिए, max for 3 times. So that because आपके first reading में you will just have the clear idea and second reading में आपको वो सारे points भी आपके mind में gather up हो चुके होंगे. Second, underline the important keywords and sentences. जो important keywords लगे, जो sentences आपको लगा कि नहीं ये आपको miss out नहीं करना चाहिए एक précis writing में, you should underline those keywords and sentences. Third, decide the theme of the passage. Because आपको जब तक theme पता नहीं होगी you cannot decide the title of the passage, which is the next point also. So theme आपको समझ में आना चाहिए कि passage किस topic पे है, किस topic में किस way में बोला गया है, tone क्या है उस article का. Next comes the title of the passage and these 2 points are interrelated because जब आपको theme पता होगी then only you can decide the title of the passage. Next, don't use exact sentences from the passage. आपको passage से exactly sentence को उठाकर reproduce नहीं करना है. You cannot do so. नहीं तो आप समझ में ही नहीं आएगा कि आपने वो पैसेज को समझा भी या नहीं समझा. सो आपको अपना सेंटेंस फॉर्म करना है, अपने वर्ड्स यूज करने हैं बट द आइडिया शुड बी द सेम एज द पैसेज. नेक्स्ट कम्स द क्लैरिटी, दैट यू शुड हैव द क्लैरिटी. आपने कुछ भी लिख दिया, कैसे भी ग्रामर, कुछ भी वोकैबुलरी यूज करके, नो, दैट शुडंट बी डन. नेक्स्ट,
रिफ्लेक्ट योर इंटेलिजेंस, दैट मीन्स आपको ऐसे वे में अपना आइडिया को रिप्रेजेंट करना है उन लिमिटेड वर्ड्स में दैट द एग्जामिनर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज वेरी वेल. यूज स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको पैसेज में कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, दैट मीन्स फिगर्स, नंबर्स, कुछ भी ऐसा फ्रैक्शन, एनीथिंग दिया हुआ है, तो वो आप ज़रूर मस्ट, दैट इज़ अ मस्ट टू यूज़, वो आप ज़रूर यूज़ करो अपने प्रेसी में. नो कमेंट्स. यू शुड नॉट कमेंट अबाउट एनीथिंग. आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है कि आप किसी से अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई रिकमेंड कर रहे हो, नो, यू कैन डू सो. द वर्ड लिमिट, 1/3 ऑफ द पैसेज. आपको 1/3 से एक्सीड नहीं करना है. हाँ, 5-4 वर्ड्स एक्सीड हो सकते हैं, दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट राइट मोर देन 10-20 वर्ड्स एक्स्ट्रा, बिकॉज यू शुड हैव द लिमिट, बिकॉज प्रेसी का मतलब ही होता है 1/3 ऑफ द पैसेज. नेक्स्ट कम्स यूज थर्ड पर्सन. आपको थर्ड पर्सन, वो पैसेज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसी भी पर्सन में हो, यू शुड राइट द प्रेसी इन थर्ड पर्सन. एंड लास्टली, इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द पैसेज. आपने कितने वर्ड्स में वो प्रेसी लिखा है, दैट शुड बी मैंशनड एट द एंड ऑफ द पैसेज, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए. जस्ट जैसे कि हम लेटर राइटिंग में एक सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें उस रीडर का अटेंशन ग्रैब करना होता है टू द सब्जेक्ट. Just like that only, you have to indicate the number of the words at the end of the passage. ह्यूमन बींग के बीच का जो रिलेशन है, जो कि आज न्यू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हो गया है, उसके बारे में. डिफेक्ट मीन्स द डिसएडवांटेज और द बैड इफेक्ट, जो कि हमारे सिविलाइजेशन का है कि हम नहीं जानते हैं कि हमें अपने नॉलेज के साथ क्या करना है. वी हैव द नॉलेज बट वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट नॉलेज. सो साइंस हमें वो सारे पावर्स दिए हैं जिससे कि हम अपने आप को गॉड से कम नहीं समझ सकते हैं, बट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन. हम उस गॉड वाले पावर को स्मॉल चिल्ड्रन जैसे यूज करें. वाई? क्योंकि हम मशीन्स को मैनेज करना नहीं जानते हैं. वी डोंट नो हाउ टू मैनेज मशीन्स. मशीन्स बनाए गए थे मैन के सर्वेंट के लिए, बट हम उनके सर्वेंट बन चुके हैं. वी आर सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट वी हैव बिकम द सर्वेंट ऑफ मशीन्स. मोस्ट मैन, हम लोग सारे क्या करते हैं, अपने लाइफ को वेस्ट करते हैं, सिर्फ मशीन के चारों तरफ अपने लाइफ को बना देते हैं कि हम उनके और अलावा कुछ अपने आप लाइफ में देख ही नहीं पाते हैं. और मशीन बहुत स्टर्न मास्टर होते हैं. स्टर्न मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट. दे मस्ट भी, उनको कोल चाहिए होता है टाइम पर, पेट्रोल चाहिए होता है ड्रिंक को, ऑयल चाहिए होता है, और सही टेम्परेचर भी चाहिए होता है. ये सब चीज़ ना दो तो वो काम नहीं करेंगे. दे आर वेरी स्टर्न विद देयर बिहेवियर. एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स, अगर उन्हें ना दो तो दे ग्रो सल्की, दैट मीन्स दे विल इरिटेट यू एंड रिफ्यूज टू वर्क. बर्स्ट विथ रेज गुस्से से फट जाएंगे. एंड ब्लो अप एंड विल ब्लास्ट. एंड स्प्रेड ruin and destruction. ruin और destruction हर तरफ होगा, all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can do to keep them in a good temper. So उनका temperature maintain करना, उनका एक certain behavior maintain करना is very very important for us to maintain a peaceful environment. Already we find it difficult either to work or play without the machine. हमें already work पढ़ो या play करो, हमें उनके बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं. And a time may come when they will rule us all together just as we rule the animals. जिस तरह से हम animals को rule करते हैं, उस तरह से कुछ time के बाद वो सारे machines हमें rule करेंगे. So the word limit is 206 words. So we have to write 1/3 of the passage. So the title is Man and Machine. Very compact, very related to the topic. Civilization has given man scientific knowledge, बट नॉट द वे ऑफ यूजिंग इट प्रॉपरली. इससे हमें फर्स्ट 2-3 लाइन्स का एक आइडिया मिल गया कि सिविलाइजेशन में साइंटिफिक नॉलेज आ गया है, बट हमें तरीका नहीं पता है. मैन इन्वेंटेड मशीन्स टू एक्ट एज सर्वेंट, बट रिवर्स हैज़ बीन द केस. मैन तो मशीन को बनाया पर कुछ सर्वेंट बनाने के लिए, बट रिवर्स काम हो गया. टुडे मैन इज सो मच डिपेंडेंट अपॉन देम दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट देम. और जिस तरह से हमने वॉशिंग वगैरह के बारे में बात किया था, वॉशिंग, प्लेइंग, क्लीनिंग, ये सब के बारे में, जैसे पेट्रोल के बारे में, तो हम उसे लिख सकते हैं इस तरह से कि हम उनके बिना नहीं अपने लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं. ही हैज़ टू स्पेंड हिज लाइफ लुकिंग आफ्टर देम, अदरवाइज दे कॉज मच डिस्ट्रक्शन. अगर हम उनकी लुक आफ्टर ना करें तो डिस्ट्रक्शन होगा. मैन्स डिपेंडेंस ऑन मशीन्स प्रोग्रेसिवली गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे. और इस तरह से हमारा जो उन पर डिपेंडेंस है वो हर दिन इंक्रीज हो रहा है. सो यू गॉट द आइडिया दैट द पैसेज जो प्रेसी लिखा गया है वो पूरा का पूरा पैसेज का आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है. कोई अपना ओपिनियन नहीं, थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है, एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं किया गया है. एंड द वर्ड लिमिट इज ऑल्सो 67 वर्ड्स. सो इफ यू ऑल गेट द explanation, if you all got the idea behind writing the Prezi writing, please subscribe to my channel. Thank you.